Good morning, my dear students. Welcome in our BST class of 21st July 2020. And till now we have completed supervision. Now we move to second element of directing, and the second element's name is motivation. So we can start with a short story given in your book that this is a story of Rasmi Joshi. You can see Rasmi Joshi. If we will go through with this paragraph, we will find that in the beginning, Rasmi Joshi was very young and energetic, ambitious staff, and he wants to pertain a higher top level management job. Once what happened, once under her, one sales girl has done a good job, and Rasmi took the credit of that girl because she was superior of her. But now when there is a vacancy of top level management which is just superior to her, retired from the organization, and there is a question for organization to recruit the that vacant position. In that case, the organization has taken a person from outside, which is not bearable by Rasmi Joshi, and she begin to deteriorate because she wants that job. In that case, what happened, when she started deteriorated, मतलब उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया और वो काम नहीं कर पा रही थी. तो जब एक नया मैनेजर ज्वाइन किया तो उसके पास एक ही प्रॉब्लम था कि उस किस प्रकार से जो है रश्मि जोशी को मोटिवेट करे. तो इस शॉर्ट स्टोरी से यही हमको शिक्षा मिलता है कि जब हायर एम्बिशियस हो, जब हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तब भी आदमी का जो है डीमोटिवेट हो जाता है. कल ही मैंने न्यूज़ में सुना है कि शायद गुरुग्राम था जगह का, वहाँ पे 2 बच्चों ने, क्लास 10 एक क्लास 12 के बच्चों ने सुसाइड कर लिया. हाउएवर दे वर स्कोरिंग 75% ऑफ मार्क्स. तो इस तरह से डीमोटिवेशन हो जाता है कि हमें डिज़ायर्ड नहीं मिलता है, डिज़ायर्ड गोल, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज़ मोटिवेशन. यू कैन सी मैंने इस चैप्टर का पूरा PDF फाइल आप लोग से शेयर किया है थोड़ी देर पहले, और कहा भी था कि आपको यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन. सो स्टार्ट रीडिंग. मोटिवेशन. In case of Rasmi reveals an important fact of managerial work. It is not always possible to get the best work from employees. मतलब कि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि बेस्ट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़ merely by exercising formal authority. मतलब फॉर्मल अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से यानी लेने से केवल नीचे वाला जो कर्मचारी वो अच्छा काम नहीं करता है. What makes people to behave the way they do? Why are some people reluctant to do the work? Reluctant means होता है not willing to do the work. Reluctant to do the work though they have ability to do. यानी उसके पास काम करने की क्षमता है, फिर भी वो अनिच्छा यानी रिलक्टेंट होते हैं, काम नहीं करते हैं. What should be done to make people work efficiency? क्या करना चाहिए कि वो efficient काम करने लगे. For answering these questions, a manager should try to develop insights into cause of behavior of people. यानी उसको आदमी का बिहेवियर का कॉज को देखना चाहिए. A manager may come across highly committed and hard working staff or lazy. मतलब उसको तरह तरह के स्टाफ मिल सकते हैं, हार्ड वर्किंग मिल सकते हैं, लेजी स्टाफ भी मिल सकते हैं. Evasive and superficial workers. He or she may wonder that to do with workers not willing to work to their potential. Psychologists say it is motivation which stimulates people to take up work voluntarily. Let us try to understand something about motivation. तो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग कहते हैं कि आदमी को
उसके लेवल तक उठाने के लिए, काम करने के लिए, जिस लेवल का वो कर्मचारी है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक वर्ड है मोटिवेट करना पड़ता है, एंड वही मोटिवेशन कहलाता है। तो अब चलिए हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, मतलब कि उसको काम करने के लिए प्रेरित करना, इंड्यूस करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन ए डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए, उसको काम करने के लिए मोटिवेट करना, इंड्यूस करना। While discussing about motivation, we need to understand three interrelated terms. यानी तीन इंटर समझना पड़ेगा, and that one is motive, second is motivation and motivator. यानी मोटिव मतलब होता है कि हमें क्या पाना है, मेरी इच्छा क्या है। किसी भी कर्मचारी का अपना एक मोटिव होता है, स्टाफ का मोटिव है। मोटिवेशन नाउन हो गया, उसके अंदर जो उसको करने के लिए जो उत्साहना, प्रोत्साहना, अंदर में इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट जो है, दैट इज नोन एज मोटिवेशन। एंड मोटिवेटर, और जो ये काम करे उसको हम लोग मोटिवेटर कहते हैं। जो ये काम करे उसको हम लोग मोटिवेटर कहते हैं। लेट अस ट्राई टू नो अबाउट दीज टर्म्स। ये पहला वाला है, देखिए मोटिव। मोटिव को हम लोग समझते हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड वर्ड्स। A motive as inner state that energizes, activates or moves and directs behavior towards the goal, यानी गोल अचीव करने के लिए जो हमारी इच्छा होती है उसको मोटिव कहते हैं। मोटिव अराउज आउट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, रियलाइजेशन ऑफ मोटिव causes restlessness in the individual which prompts some action to reduce such restlessness. For example, the need of food causes hunger, an account of which a man searches for food. Some such motives are hunger, trust, security, affiliation, need and comfort, recognition etc. तो ये कुछ मोटिव आपको है जो कि बहुत बेसिक है, जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा, प्रेरणा, प्यार, ज़रूरतें, आराम। रिकॉग्निशन मतलब होता है आपको रिकॉग्नाइज करना कि आप यू आर द पर्सन, यानी आप सम्मान जिसको बोल सकते हैं, दैट इज मोटिव। नाउ कम टू मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, यानी किस प्रकार से अपना जो है मोटिव को पूरा कर सकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन। एंड चलिए अब हम लोग चलते हैं मोटिवेटर्स। थर्ड पॉइंट है मोटिवेटर। Motivator is the technique used to motivate people in an organization. Manager use diverse motivators like pay, bonus, promotion, recognition, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best. ये मोटिवेटर यानी कि वो तत्व जिसको देखकर आदमी काम करने के लिए आगे बढ़े, उसमें सबसे पहला चीज़ होता है पे। देखिए पे है, पैसा ही है, पे भी पैसा है, बोनस भी पैसा है, प्रमोशन आपका स्टेटस है, पद है, रिकॉग्निशन भी एक प्रकार का पद ही है, प्रेज मतलब किसी का बड़ाई करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, चार्ज दे देना। जैसे कोई बड़ा काम, जैसे कोई आप पुलिस में आप देखते होंगे पिक्चर में कि फिल्म में देखते होंगे, मूवीज़ में, कि जब कोई काम नहीं हो रहा हो तो किसी ऑफिसर को हम लोग वो चार्ज दे देते हैं। जनरली वो ऑफिसर उस पिक्चर का एक्टर होता है, हीरो होता है, तो वो क्या होता है, तो उससे वो मोटिवेट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोटिवेटर, यानी कि उसको हम लोग चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मोटिवेटर का काम करता है। नाउ सम ऑफ द डेफिनेशंस टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ, ये आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है जो कि नीचे पे दिया हुआ है, हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ दो तीन हम लोग उठाते हैं। मोटिवेशंस मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। बहुत छोटा है, यानी ये क्या है, स्टिमुलेट करता है पीपल को कि वो अपना काम करे। तो दूसरा हम लोग देख सकते हैं, मोटिवेटर रेफर्स टू द वे ऑफ विच अर्जेस, वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और नीड्स, डायरेक्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इतना लंबा आपको याद करेंगे, छोटा सा है, बहुत अच्छा ऊपर वाला है।
इसी को आप लर्न कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन में। तो चलिए अब हम लोग फीचर्स ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, ये फीचर्स क्या है मोटिवेशन का। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है कि ये मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग दैट अर्ज, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग फॉर नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी ये नेचुरल है, ये आपके अंदर से आने वाली प्रेरणा है, ताकत है, विचार है। दैट इज़ फर्स्ट इसका आपका ये है फीचर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर सेकंड जो है, ये देखिए, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल द प्रमोशन in job may be given to employee with the objective of improving his performance. If the employee is interested in promotion, it helps to produce behavior to improve performance. कहने का मतलब कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है मोटिवेशन। जैसे आपको प्रमोट कर दिया जाए किसी पद पर, तो आप उस पद के लिए काम करिएगा, अपना प्रदर्शन दिखाइएगा, तो भी उसका एक प्रकार का ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। चलिए नंबर थर्ड आइए, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों तरह से हो सकता है भाई। अभी हम लोग हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में देख सकते हैं, वो निगेटिव हुआ था, उसका निगेटिव मोटिवेट हुआ। निगेटिव मोटिवेट अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग निगेटिव मोटिवेटेड हो गए हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। अधिकतर इन मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे एंड कोलकाता, दिल्ली में तो कुछ सिचुएशन बहुत सुधरा है, लेकिन वेरी वर्स्ट सिचुएशन वी आर फेसिंग इन कोलकाता एंड मुंबई। तो वहाँ पे आप बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, तो उनको मोटिवेट करना भी एक है। तो नंबर 4 आइए, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हिट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। देखिए ये एक है कि एक आदमी जिसको कि अभी जो एग्जांपल मैंने कल आपको दिया था, कल मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी जिसको 75% मार्क्स आ रहा है, वो भी डीमोटिवेटेड हो रहा है और वो सुसाइड कर लेता है। और एक आदमी जो कि केवल 40% आ रहा है, उसमें भी बहुत खुश है कि हम पास कर गए। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि आदमी हिट्रोजीनियस है, यानी तरह तरह के लोग इस संसार में मौजूद हैं, और कोई किसी के लिए कुछ छोटी सी भी सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता, उसको सेलिब्रेट करता है, लाइफ को बहुत एंजॉय करता है, और किसी के लिए बहुत बड़ा चीज़ भी अचीव करके वो बैठा रहता है कि अभी तक हमने कुछ अचीव नहीं किया है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो समझना बहुत मुश्किल है। नाउ कम टू, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दैट इज़ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस यानी आप इसमें प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि भाई आप किस तरह से आपका जो है आदमी का व्यवहार, किस प्रकार आप जो है आपके अंदर ये मोटिवेशन आता है, कैसे आप किसी भी चीज़ को काम करने के लिए करते हैं। तो मैं अपने क्लास में एक बच्चा है गौरव, उसका एग्जांपल लेता हूँ। उसके मन में आर्मी ज्वाइन करने का है, तो उसको स्टिमुलेट करते रहता है, वही इच्छा उसको स्टिमुलेट करते रहती है कि भाई दौड़ो, हमेशा उसके बारे में सोचो। वो दूसरों को, अपने आसपास के जो बड़े सीनियर लोग हैं उसको देखता है कि इन्होंने अभी आर्मी में ज्वाइन किया है। कुछ लोग जब आर्मी में ट्रेनिंग करके आते हैं तो अपना कहानी सुनाते हैं, उसको भी देखकर, उसको भी सुनकर, उसका स्टेटस को देख के, यूनिफॉर्म को देख के, पे को देख के, ऑफ कोर्स पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर आदमी गौरव कुमार मोटिवेट होता रहता है कि हमको आर्मी की तरफ जाना है। लेकिन वहाँ उसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है आर्मी में चला गया है। तो इस तरह से वो एक ये हम लोग इस पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो जो है आदमी जो है उस मोटिव को पाने के लिए वो मोटिवेशन उसका होता है। तो लेट्स सी मोटिवेशन प्रोसेस बेस्ड ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखिए ये प्रोसेस जो है इंसानी ज़रूरतों पर निर्भर है कि वो किस प्रकार जो है ह्यूमन नीड्स है और किस प्रकार जो है वो उसको पूरा करना चाहता है। ए सिंपल मॉडल टू एक्सप्लेन मोटिवेशन प्रोसेस इज प्रेजेंटेड बिलो। एक उदाहरण दिया गया है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी कि इंसान का ज़रूरत है वो किस तरह से पूरा होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रामू इज़ वेरी हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। By 1 p.m. he became restless and started walking on the road in search of a hotel for snacks or meals. After walking 2 kilometers, he could find a hotel where roti and dal was available.
for ₹10. Since he had only ₹15 in his pocket, he paid ₹10 and had a satisfying meal. After taking a meal, he felt that he had regained energy. यानी उसको भोजन मिल गया, उसके बाद उसको लगा कि हाँ मेरा जो है मुझको एनर्जी मिला है. An unsatisfied need of an individual creates tension, which stimulates his or her drives. These drives generate a search behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of tension. देखिए कितना सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि रामू एक आदमी है, उसको भूख लगा हुआ है, वो दोपहर में सुबह में नाश्ता नहीं किया था, उसको भूख लगा, वो उसके पास 15 रुपये थे, वो 2 किलोमीटर तक इधर उधर देखा, एक होटल मिला जिसमें कि उसमें 10 रुपये में उसको रोटी और दाल मिल जाता था, वो खा लिया. खाने के बाद उसको एनर्जी फील हुआ, और जब तक वो खाना नहीं खाया था तो वो मूव कर रहा था रोड पर, रेस्टलेस हो रहा था. तो आदमी के साथ वही होता है, जब मोटिव उसका जो होता है, जो बेसिक चीज़ में हंगर है, थर्स्ट है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, होम, तो ये सब चीज़ें तो आदमी को ईजिली अभी का ज़माना में सबको मौजूद है. लेकिन आज का ज़माना में जो आप लोग का सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोग मानते हैं कि आपका एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब हो, नौकरी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, तो एक सिक्योरिटी आपको फील हो. तो उसकी वजह से आदमी रेस्टलेस फील होता रहता है, कुछ चाह के भी उस चीज़ से भाग नहीं सकता. आज के दिन में रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी यंग लाइक अंश, हर्षित, गौरव, केतन, ये मैं चारों लड़कों का नाम ले रहा हूँ, ये चाह के भी इस चीज़ को भाग नहीं सकते हैं कि हमको आगे कुछ नहीं करना है, हम भाग सकते हैं, बिकॉज दैट मेक्स देम रेस्टलेस. वो हमेशा उसको रेस्टलेस करेगा, और रेस्टलेस में क्या कर सकता है, इधर उधर घूमेगा, उसके अंदर बहुत सारा उल्टा पुल्टा विचार भी आ सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके यहाँ पॉजिटिव चीज़ हो तो वो पढ़ाई करे, बिल्कुल उसी पर फोकस होके कि नहीं हमको इसी चीज़ से करना है. तो ये दीज आर सम, आपको ये एग्जाम्पल दिया गया. तो यहाँ पे आपका टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा. तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस का आपको ये दिया हुआ है कि ये किस तरह से होता है. सबसे पहले होता है अनसेटिस्फाइड नीड. क्या क्या है आपका, कि आपका कौन कौन सा नीड्स फुलफिल नहीं हुआ है. बच्चों में देखिए, किसी के पास बहुत पैसा होता है, उसको एक मोबाइल चाहिए, माँ पापा जो उसको मोबाइल नहीं देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा फंक्शन है. माँ पापा देखते हैं कि मोबाइल अगर दे दिया जाए तो वो पबजी खेलेगा, चाहे मैसेज भेजेगा, व्हाट्सअप करेगा, और उसका सारा समय जो है यूट्यूब या बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखते रहेगा, तो इसलिए वो मोबाइल नहीं देते. लेकिन वो जो उसका वो मोटिव है, वो उसको हमेशा परेशान करते रहता है, उसके अंदर हमेशा लगता रहता है कि हाँ हमको मोबाइल चाहिए, और वो हमेशा मम्मी अब इसी चीज़ के लिए, वो अगर उसको बोला जाए कि तुम पढ़ोगे तो मोबाइल देंगे, इतना % मार्क्स आएगा, तो मन में फिक्स कर लेगा चलो अब किसी विधि तो मोबाइल नहीं मिल सकता, अब चलो पढ़ना पड़ेगा. तो उसको पढ़ने के लिए स्टिमुलेट करता है वो चीज़. तो वो अनसेटिस्फाइड नीड है. फिर होता है उससे टेंशन होता है, टेंशन होना ही है. टेंशन के बाद ड्राइव्स होगा, ड्राइव्स मतलब इसका मूवमेंट होगा, उसके सर्च बिहेवियर होगा कि हम उसको किस प्रकार प्राप्त करें, एंड देन सेटिस्फाइड होगा. सेटिस्फाइड के बाद आपका जो लास्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ टेंशन. तो ये हो गया आपको. तो इस प्रकार आपका मोटिवेशन प्रोसेस काम करता है. तो यहाँ तक अभी हम लोग, आई होप अभी तक आप लोग समझ गए होंगे. तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करें. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ हम लोग देखेंगे. थैंक यू सो मच.